السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، آپ کو اس صدی کا سب سے مہنگا یعنی 750 روپے کلو گوشت والا ٹرو مبارک ہو. ناظرین، ڈاکٹر نے کیونکہ مجھے گوشت کھانے سے منع کیا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کی ٹینشن نہیں لی، بلکہ میں نے جا کے آسمانی پنگوڑے پہ جھوٹے لیے ہیں. اور ناظرین، آپ یقین کریں کہ جب میں اوپر جاتا تھا تو دلیری سے جاتا تھا، جب پنگوڑا نیچے آتا تھا ہاں میں مر گیا میرے منہ سے نکل جاتا تھا. ناظرین، جب پنگوڑا اوپر گیا تو میں نے اوپر سے نیچے انسانوں کو دیکھا تو مجھے چھوٹے چھوٹے نظر آئے. اس پنگوڑے کی وجہ سے عیی نے ایک فلسفہ مارکیٹ میں چھوڑا ہے کہ جو کرسی اونچی ہوتی جاتی ہے بندے چھوٹے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. بڑی بات ہے یار اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ پاک مجھے صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. کیا کیا فلسفہ میں نے پیش کیا دنیا. یہ جو میں نے ابھی کہا، یہ جو اپنا یہ اللہ مجھے معاف کرے کیا تھا یار، یہی میری مصیبت ہے، میں اپنے فلسفے خود بھول جاتا ہوں. سیانے لوگ اس کی کتاب چھپوا کے نامور بن جاتے ہیں، میں نے اپنی کتاب ہی نہیں چھپوائی یار. چھپوا لو تم بھی کتاب. جو گھر گیا وہ مر گیا. نام تو اچھا ہے. تم بھی ایک چھپوا لو. ارے سنتے ہو یار میری بات سنو، تم نے آج کا میرا ٹرو خراب کروایا ہے. تمہاری جو کل والی حرکت ہے، کیا ہوا؟ وہ میرا جو برتھ ڈے کارڈ تم نے حرکت کی ہے نا، اس کی وجہ سے آج تمہاری بھابھی کا سارا دن موڈ خراب رہا ہے. ارے سنتے ہو والی؟ جی وہی. تمہاری بھابھی نے بھی میری بڑی بےزتی کی ہے. بےزتی تم نے کل میری کی ہے تو تمہیں کیوں ڈانٹ پڑی ہے؟ نہیں، اسے کہا کہ دیکھو جنید بھائی ڈوئیوں والی تصویریں بنوا رہے ہیں اور تم ڈوئیاں کھا کے ہائے ہائے کرتے ہو. اچھا میری بات سنو، تم نے بدلہ لے لیا ہے نا اپنا، اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. گھر کی باتیں گھر میں چھوڑ کے آئے. بس ٹھیک ہے، اوکے، آئی ایم فائن. ہاں ٹھیک ہے نا، آئندہ کے بعد گھر کی بات شو میں نہیں ہوگی. چلو ٹھیک ہے، دونوں طرف سے. ہاں دونوں طرف. یہ ذہن میں رکھنا. بالکل دونوں طرف. چلو بات ٹھیک ہے. میں تم سے مذاق کر رہا تھا، وہ جو میں نے عیدی والا فراڈ تم سے کیا، ایزی پیسے والا. پر جائی تمہاری نے میری بڑی بےزتی کیا. اس نے کہا کہ وہ جنید کو واپس کرو اس کا 500. ہاں دل تو میرا یہ کر رہا ہے کہ تمہارے منہ پہ ماروں، مگر چونکہ یہ کاغذ کا اس لیے ایسے ہی پکڑ لو. چلو تم نے دے دیے، میں نے لے لیے. ٹھیک ہے. اب نہ مجھے سنانا کوئی بات، علامہ نہ دینا. تم بھی اپنے وعدے پہ قائم رہنا. نہیں، میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں. بس ٹھیک ہے، چلو رکھو. تھینک یو. بندہ ویسے اچھا ہے یہ. میں تو بات کر رہا تھا عید کی مہنگائی کی، تم خود ہی اس طرف کو لے آئے. یار بہت مہنگائی تھی. واقعی یار بہت زیادہ مہنگائی ہے. ہر دور میں ہم سنتے آئے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، بہت زیادہ، اور ہر عید پہ سنتے ہیں کہ پچھلے سال سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. لیکن یار پہلے تو کہا جاتا تھا نا کہ غریب آدمی کے لیے عید منانا مشکل ہو گئی ہے. اب تو حقیقتاً اپر مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے بھی عید کی جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں وہ خریدنا بھی مشکل ہو گیا. یار 700 روپیہ کلو گوشت، یہ کچھ عرصہ پہلے کرو کہ یہ نا 700 روپے کلو. مجھے پورا یقین ہے کہ اس نے تو اپنی زندگی میں 700 روپے میں پورا بکرا خریدا ہوگا. دیکھو، ارے سنتے ہو، دیکھو دیکھ لو پھر تم نے وصول بات کی. یہ تم نے کہا ہے اپنی زندگی میں نے 700 کہا گھر کی باتیں نہیں کرنی. چلو ٹھیک ہے پھر اس نے 250 کے بکرے بھی دیکھے ہوئے، بلکہ اس کے دور میں تو 250 کا اچھا پڑا کو ایف اے پاس بکرا آ جاتا تھا. یار تم یقین کرو جنید، مجھ سے تو وہ منظر نہیں دیکھا جاتا جب کسائی کی دکان پہ کو بندہ بیچارہ آدھ پا گوشت لینے آیا ہوتا ہے اور وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ بھی کوئی ڈاکٹر کے کہنے پہ بیچارہ آیا ہوتا ہے آدھ پا گوشت لینے، اور 2-3 کلو گوشت جو خرید رہے ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے فارغ ہو جائیں تو پھر میں کہوں کہ آدھ پا گوشت دے دو، میری اماں نے یخنی پینی. احساس شرمندگی سے زیادہ احساس گناہ لگتا ہے بیچارہ. اور اس وقت تو بالکل دل کو ہاتھ ہی پڑ گیا میرے، جب میں نے دیکھا کہ بالکل مسکین غریب بچے آسمانی پنگوڑے کے پاس کھڑے ہیں، اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ تڑا تڑ ان کے بچے چولہے لے رہے ہیں، اب بچے غریبوں کے پیچھے کھڑے ہیں بیچارے. کیا معاشرہ ہے یار کہ ہم تہوار بھی یکساں طور پر نہیں منا سکتے.
यानी मातम करने को जी करता है ऐसे माशरों पे। क्या ये माशरे जिंदा माशरे कहलाने के हकदार हैं यार? हाय हाय हाय, अल्लाह माफ करे यार, क्या मुआशरा बन गया हुआ है ये कि 500 रुपया ईदी दे के बाद में टगे टगे की बातें करते हैं। किधर की बात कहाँ ले गए? सारे दुख बीच में ही होते हैं ना, समझा करो। ये देखो यार, बाकी जरा कंपैरिजन करो, ये जो हमारे साल ईद पे रोना रोते हैं, कभी ये जमहूरियत बार की 4 ईदें देख लो और इसको पिछले जो आमरीयत की ईदें थी उनसे जरा इनका मुवाजना करके देखो। जो बुनियादी जरूरत की अशिया 4 साल पहले जो आटा था वो सिर्फ 13 रुपए किलो था और आज आटा 35 रुपए किलो है। 13 रुपए का तो आप आटा ले तो उसकी चीनी नहीं बनती। चीनी 21 रुपए किलो थी, आज 78 रुपए किलो है। लो 21 रुपये कहा और 78 रुपये किलो चीनी, अल्लाह माफ करे। अब तो मक्खी चीनी पे बैठे ना जी, तो दुकानदार उससे किराया वसूल करती है। चीनी पे बैठी हो किराया दो, मुझे नहीं पता। यार दूध 32 रुपए लीटर आसानी से मिल जाया करता था, आज 75 रुपए लीटर नहीं मिलता। नहीं, ये तो 75 रुपये किलो ठीक हुआ है दूध। पहले भैंसे शिटाला खाया करती थी, अच्छा। अब जाफरान और चॉकलेट खाती। तो दूध छोड़ो, पेट्रोल 50 से 85 पे चला गया। नहीं, ये भी कोई ऐसी कल्पने वाली बात नहीं है। 50 से 50C हुआ है, सिर्फ एक सी बढ़ी और आप लोग सी करना शुरू हो गए। सीएनजी 25 रुपए से 63 रुपए पे चली गई है। तो यार सीएनजी के रेट को छोड़ो, मिले तो सही। ये मिलती मुसीबत है। नहीं। सीएनजी का तो मतलब हो गया वो सीएनजी, चले ना गाड़ी। और मैं ये समझता हूँ कि ये महंगाई की लहर नहीं है, ये मजबूरी माशरती बेहिसी की लहर है जिसने पूरे माशरे को पूरी यानी जोर से जकड़ा हुआ है और उसकी गिरफ्त से हम कोई भी हम में से आजाद नहीं हो पा रहा। तुम सिर्फ अपना मुवाजना दीगर इस्लामी मुआशरों के साथ करके देख लो कि हम हमारी हुकूमत का, अवाम का ईद पर, रमजानुल मुबारक पर या दीगर त्योहारों पर क्या रवैया होता है, क्या सलूक रवा रखते हैं, तो शर्म महसूस होने लगती है अपने आप से। यार तुम इस्लामी मुआशरों की बात कर रहे हो, ये मैंने सुना कि गैर मुस्लिम ममालिक कई ऐसे हैं जहां पे मुसलमानों के रमजान के एहतराम में वो लोग ये रोजमर्रा के इस्तेमाल की खाने पीने की चीजें सस्ती कर देते हैं। और इस सारे फिनोमेना का जो सबसे अलमनाक पहलू है ना वो ये है कि ये हम सारा दिन आज़ारी करते रहते हैं महंगाई के खिलाफ और लूट खसूट के बारे में, लेकिन जब इस्तेसाल करने का मौका आता है तो वही शख्स जो इस्तेसाल का शिकार हो रहा है वही इस्तेसाल करने में सबसे आगे होता है, खा वो सदर मुमलिकत हो या एक आम खांचा फरोश हो। हाय हाय हाय, बहुत ही बुरी हालत हो गई हुई है महंगाई की तरफ से। तो अल्लाह माफ करे, मर्द बेचारा घर का मर गया, पिस गया बेचारा, पैसे कमा कमा के सिर्फ अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए, और फिर बीवियां कह रही होती हैं, अरे सुनते हो। आई एम सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया। फिर और बताना, मैंने कुछ वायदा तुमने तोड़ दिया, मैंने कुछ और बताना था। आई एम सॉरी। ओह माय गॉड। नाज़रीन यह वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। यार ये मेरे ज़हन से कैसे निकलेगा? अरे मैं निकालूंगा, मैं निकालूंगा। सही बताओ, किधर रखी है चिप्स मेरी? चिप्स मेरी क्या यार किधर गायब हो गई? अभी मैं इधर रख के तो इधर मुंह किया तो गायब हो गई है। क्या तुमने सोने की अंगूठी रख दी थी? यार चिप्स है, लिफाफा पूरा इतना बड़ा। अच्छा अजीज साहब, गायब होने वाली चीज ही गायब हो गई। ये इसी की हरकत है, हमारी इस ट्रायंगल में सबसे ज्यादा चिप्स की शौकीन यही है। सर चिप्स वापस करो। चिप्स थी, को चुआनी नहीं थी जो गायब हो गई है। चलो जाने दो यार, तुमने भी तो किसी की उठाई होगी। अजीज साहब, आप चिप्स की बात करें, दुनिया में वाकई इतना बड़ा एक ट्रायंगल है जहाँ पे छोटी चीज से लेके बड़े बड़े जहाज तक गायब हो जाते हैं। अमान से? हाँ जी। तो दफा करो चिप्स को, ये जहाज कहाँ गायब हो जाते हैं? अजीज साहब, आपने सुना होगा ना बरमूदा ट्रायंगल का, हाँ। जहाँ पे बड़े बड़े जहाज गायब हो जाते हैं और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। अच्छा। और आपको पता है अजीज साहब, पिछले 100 साल के दौरान इस बरमूदा ट्रायंगल में 1000 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, उनकी अमवात हो चुकी हैं। गायब से मुझे याद आया, मेरी चिप्स कहाँ है यार? चलो। बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे बड़ी आज तक की अनरिजॉल्व मिस्ट्री कहा जाता है। Exactly. इसके बारे में बहुत सारे वैसे अफसाना तराजियां भी बहुत ज्यादा हैं और यानी मुबालगा अमेजियां भी शामिल की गई हैं, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, नॉवल लिखे गए हैं। Exactly. लेकिन स्टिल इसके बारे में, इस बात में तो कोई दो आरा नहीं है कि ये बहुत बड़ी अनरिजॉल्व मिस्ट्री है। इसके कई पहलू जो है। नहीं तो जहाज किस तरह गायब हो जाते हैं? पूरे के पूरे जहाज गर्क हो गए, पता ही नहीं चला आज तक यार। क्या मतलब, बहरी जहाज ही गायब हो जाते हैं? बहरी जहाज भी, हवाई जहाज भी और छोटी शिप्स भी,
बहुत अच्छे। ये समंदर का इलाका है, कोई जमीन का इलाका है, कहाँ है ये? जाहिर है समंदर में है ये ट्रायंगल, लेकिन ये कोई ट्रायंगल जो है ये वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है इसकी। ये बहामास के पानियों में है और कमोबेश ये 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित ये ट्रायंगल है। इसका एक कोना मियामी में, दूसरा पोर्टोरिको में और तीसरा बरमूदा में बनता है। सर एग्जैक्टली इसके ऊपर बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे गए हैं और बहुत सारी मूवीज भी बनी है। इन्हीं मूवीज ने और नॉवेल्स ने इस फिनोमेना को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, इसको इतना ज्यादा मिस्टिक बना दिया है कि इसको हकीकत से बहुत दूर कर दिया है। वरना देखो 1945 में 15 दिसंबर 1945 को इस मिस्ट्री का आगाज हुआ था, जब अमेरिका के 5 जो जहाज थे, फाइटर प्लेन थे, वो इस ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हुए बिल्कुल नॉर्मल मौसम में गर्क हो गए थे और आज तक उन 5 तैयारों के बारे में कोई खबर नहीं हुई कि वो कहां चले गए। और फिर इन 5 जहाजों की तलाश में जो अमेरिकी बहरिया का एक जहाज गया था वो भी पुरस्कार तौर पर लापता हो गया था। नहीं तो इस एरिया के ऊपर से भी जहाज गुजरे तो नीचे गिर जाता है। जी नहीं तो इधर को पानी में शरेश है या मकनातीस है पानी के नीचे, यहाँ वहाँ को माई बैठी हुई है जो गाड़ी मार के जहाज नीचे खींच लेती है। अगर इस सवाल का जवाब मैं दे सकता तो मुझे नोबेल प्राइज ना मिल जाता। ओहो, या अल्लाह को अक्लमंद बंदा ये को टकरा दे। यार इस बारे में बहुत सारी थ्योरीज फ्लोट की जा चुकी है, हाँ। जो साइंटिफिक भी हैं और मतलब अजीबोगरीब किस्म की, बिल्कुल बेहुदा और लफ्ज किस्म की भी हैं। कईयों का ताल्लुक सुपरस्टिशन से है। बहुत ज्यादा लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई इवल स्पिरिट है, कोई यहाँ पे एलियंस हैं जिनका कब्जा है और वो यानी इवल स्पिरिट्स हैं जो इन जहाजों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। फिर कई लेकिन साइंटिफिकली भी बहुत सारी ऐसी थ्योरीज पेश की जा चुकी हैं जो मतलब अकल को अपील करती हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग थ्योरी है वो ये है कि इसमें जो इस ट्रायंगल के एरिया है वहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड फॉग है, जो धुंध है, वो पानी को इतना डाइल्यूट कर देती है कि वो पानी के साथ मिलके दलदल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसलिए जो जहाज भी यहाँ पर आता है वो उस दलदल के अंदर धंस जाता है। बातें बड़ी हुई हैं। हमारे गुजरात भी एक नहर मशहूर थी, इधर हर साल एक बंदा मरता है जी, ये नहर हर साल एक बंदा लेती है। बंदा पूछे नहर घर से बंदा लेने जाती है, ना इसमें आके नहाओ तो ना घर को। कई हमारी बहुत बड़ी बड़ी शाहराहों पर बास खतरनाक मोड़ ऐसे हैं जो खतरनाक होने की वजह से वहां पर हादसा ज्यादा होते हैं, लेकिन कईयों के बारे में इस तरह की कई कहानियां मशहूर हो जाती हैं, फलां पीर की बद्दुआ है और फलां ये है फलां, लेकिन असल में वो अपनी खतरनाक होने की वजह से वहां पर बात ज्यादा होती है। एक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि इस ट्रायंगल में मीथेन हाइड्रेट बहुत ज्यादा है यहाँ के पानी में, और मीथेन हाइड्रेट जो है वो पानी की जो विस्कोसिटी है उसके जो गाढ़ेपन को कम कर देती है, जिसकी वजह से जहाज जो है वो जेरे आप एक डोलने लगता है। अच्छा। यानी अपना वजन कम उसका हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर भी बेसिमत होके किसी चीज से टकरा कर तबाह हो जाता है। समझ गई? ये पानी के अंदर जो नाइट्रो फास्फोरस होता है उसके तहत इसको ऑक्सीजन पैरामाइड के साथ जब नापते हैं तो उसमें से जब उसके सोडियम क्लोराइड निकाल के तो उसमें जब H2O, आसान सी बात है, तुम्हारी समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। अच्छा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बच्ची को नहीं समझ आया। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक मुसलमानों का एक गिरोह भी अपनी एक थ्योरी रखता है। वो ये कहते हैं, वो इसको मंसूब करते हैं दज्जाल के वजूद से। वो ये कहते हैं कि इन पानियों में दज्जाल का कब्जा है, और वो इस बात के लिए एक हदीस का रेफरेंस देते हैं कि दज्जाल के पास कुछ अरसे के लिए पानी का और मौसम का कंट्रोल आ जाएगा। वो कहते हैं कि यहाँ पर दज्जाल का कब्जा है, इसलिए ये इलाका खतरनाक है। और जो लोग इसकी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन करते हैं वो इसके हक में ये दलील भी देते हैं कि लफ्ज फ्लोरिडा, मियामी और फ्लोरिडा, फ्लोरिडा का जो लफ्जी मतलब है वो यही है कि एक ऐसा शहर जहां पे किसी देवता का इंतजार किया जा रहा हो। अच्छा, ये तो मुख्तलिफ लोगों की कियास रही है ना, कुछ सबूत के तौर पे किसी ने परफेक्ट बात नहीं की कि मैंने इधर ये देखा है भाई। सबसे ज्यादा जो दिलचस्प किसी एनी शाहिद की अगर रिपोर्ट है तो वो क्रिस्टोफर कोलंबस की है। वो जो कोलंबस था, जी कोलंबस था, उसने 1492 में जो इस पूरे इलाके के बारे में जो कई हिकायात लिखी थी उसमें उसने इस इलाके का भी जिक्र किया है और लिखा है कि मैंने यहाँ पे आग के गोले निकलते हुए देखे थे। और इस ट्रायंगल में आके उसने एग्जैक्टली इस ट्रायंगल का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इस इलाके का उसने जिक्र किया है। उसने लिखा है कि मेरे जहाज ने इस इलाके में आके मेरे जहाज के कंपस ने काम करना छोड़ दिया था और मैं बहुत मुश्किल से यहां से जान बचाने में कामयाब हुआ। बकवास करता है, कोलंबस तो था ही बहुत शोखा आदमी।
ना अमेरिका दरियाफ्त करता, ना इधर आके ये अमेरिकी बसते, ना इधर बुश पैदा होता, ना ट्विन टावर में जहाज बजते, ना पूरी दुनिया में बेड़े गर्क होते। यूल कलम्बस कलम्बस कलम्बस, बंदा ला जुती ले और मार मार के कलम्बस से जा दे। अच्छा, तो एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, यहाँ जिस तरह ये बरमूडा ट्रायंगल है बहामास के पानियों में, इसी तरह हिंदुस्तान के समुद्री इलाके में भी एक बहुत मनहूस समुद्री इलाका मौजूद है, जिसके बारे में उसको हिंदुस्तान की बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। अच्छा। इस बारे में हम कल बात करेंगे। चलो कल फिर कलम्बस हो। यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। यार ये कलम्बस को ओबामा का ही को दादा पड़ जाता था। अजीज साहब, गपशप के साथ साथ खबरों पर थोड़ा सा तबसरा भी हो जाए। जी फरमाइए। खबर यह है कि टीवी टॉक शोज में झगड़ों की वजह से शुरका का इंतखाब संगीन मसला बन गया। प्रोड्यूसर और एंकर्स परेशान। ओए होए 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 होए, टॉक शो देख के तो मुझे तो अल्लाह जानते शबरात याद आ जाती है। जैसे शबरात पे नहीं मोहल्लों में लड़के एक दूसरे के मुकाबले में आतिशबाजी करते, कोई चिचड़ चला रहा है, किसी ने शुरली छोड़ी हुई है, कोई पटाखे चला रहा है, किसी ने चूहा छड़ा हुआ है, ठा ठू टी टक 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 ब्राद दम, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है और समझ किसी की भी नहीं आ रही होती। बिल्कुल उसी तरह 5-6 शुरलियां एंकर ने बोतलों में लगाई होती हैं। डज 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 डज, और कई शुरलियां तो ऊपर जाने के बजाय ठुस मार गया। अजीब समा बना होता है। और वहां जो सियासतदान आए होते हैं वो भी अपना स्क्रिप्ट टका के याद करके आए होते हैं और हर फिल्म में जाके वही डायलॉग बोल रहे होते हैं, बल्कि बाहर निकल के फिर एक दफा भड़क भी लगाते हैं। फिर अपने अपने राइटर को फोन करके पूछती है कैसा, फिर एक भी डायलॉग बोला हूं। मुझे कहता हूं ना, मुझे कास्ट किया करो, मेरे जैसे अच्छा एक्टर तुम्हें नहीं मिल सकता। ऊपर से मैंने सुना कि अब एक्टरों की तरह फोन करके पूछते हैं पहले कि और कौन कौन सा कास्ट किया है तुमने शो में। नहीं पहले मुझे कास्ट बताओ, मैं नहीं काम करता, मैं तुमको बता दूं। कशमाला तारक आ रही है। नहीं भाई मैंने नहीं आना, टेबल पे गिलास भी पड़े होते हैं, मैंने नहीं आना। गिलास मारे थे। चलो फरदौस कमांड तो चलो ठीक है, मेरे पास हेलमेट है और अपने सेट से सारी लोहे की चीजें उठवा दो और शीशे की चीजें भी उठवा दो। आगे से प्रोड्यूसर कह रहा होता है आ जाए आप जनाब, आप फिक्र ना करें, हमने बाहर एम्बुलेंस भी खड़ी की हुई है। घबराए ना जनाब, सियासतदान ऐसे नहीं बनते, टॉक शो को खून देना पड़ता है। आगे से सियासतदान कह रहा होता है अच्छा बात सुनो, अगर तो इस बात पे दलील देनी है तो मैं आ जाता हूँ, अगर दलील करना है तो फिर फैसल या आबदी को बुला लो। हनीफ अब्बासी, मैंने नहीं आना भाई, वो तो दरमियान में साह ही नहीं लेता। मैं तो अमान से डॉक्टरों से पूछता फिरता हूँ भाई जी साह लेने के बगैर जिंदा रह सकता है बंदा। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर सिर्फ रौला ही डालना है ना तो मुझे रहने दो, शर्मीला फरूकी बुला लो। लंदन में खानों की खुशबू वाले मुख्तलिफ परफ्यूम मुतारिफ करवा दिए गए। यानी परफ्यूम में से खाने की खुशबू आएगी? जी अजीजी साहब। ओ यू मीन करेले गोश्त यूडी कलोन, दाल चावल स्प्रे। अजीजी साहब, ये दाल चावल और करेले गोश्त अंग्रेज नहीं खाते। तो परफ्यूम इधर नहीं बेचना उन्होंने। हर डिश का होगा परफ्यूम अगर बनाएंगे तो। अच्छा। इधर हम लोग बातें किया करेंगे, गुड यार बहुत अच्छा कोरमा लगाया हुआ है यार, मगर यार मिर्चें तेज हैं। ये खुद लगाते हो या भाभी डोई से लगाती है? सॉरी ये तो बात ही नहीं थी करनी, मैं माफी चाहता हूँ यार। वैसे गुजराले में सिरी पावे परफ्यूम बहुत बेचेगा और उसके साथ साथ इतरे रोगनी कुलचा। इजाज भट्ट साहब के कपड़ों से तो वो खुशबू आया करनी है जो फकीर के पांडे से नहीं जाती। फिरनी भी बिछई, नरगिसी कोफ्ते भी बिछई, खीर भी बिछई, पुलाव भी बिछई, बिरयानी भी बिछई, और उस परफ्यूम का नाम होगा नुलखा परफ्यूम। और अल्लाह माफ करे जितनी हमारे यहाँ गुर्बत है, गरीबों ने तो अमीरों को चक मारते फिरने। अखबारों में खबरें आया करनी है, एक भूखे मजदूर ने निहारी परफ्यूम लगाए हुए मिल मालिक को काट लिया। एक
तहकीक के मुताबिक डॉक्टरों से खवातीन मर्दों की निस्बत ज्यादा बहस करती हैं। ये वैसे बिल्कुल दुरुस्त तहकीक है, हमारा कल्चर है, खवातीन डॉक्टर्स को अपना फैमिली मेंबर समझकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता रही होती हैं। एक मिनट भरा मेरे, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएंगे ये जो पीली गोली आपने दी थी ब्लड प्रेशर के लिए, इससे खाने से तो मुझे बड़े चक्कर आते हैं। नहीं मैंने आधी भी खा के देखी है, फिर आधे चक्कर आते हैं। तो आधे चक्कर तो ज्यादा खतरनाक होते हैं, मैं तो भौंक के गिरी हूँ चूल्हे के ऊपर। मेरे तो डॉक्टर साहब छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप गोली तो ऐसे देना मुझे राम आने के, मुझे तो और मैं जख्मी हो गई हूँ। अच्छा चलो ये मुझे बताएंगे वो जो ब्लड प्रेशर वाली गोली है, अगर मैंने कढ़ाई वाला सूट पहना हो तो वो खा लिया करूँ? पता नहीं डॉक्टर साहब, वो खाने से जिस्म में चिनकें पड़नी शुरू हो जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि कढ़ाई की वजह से। सादा सूट पहन के भी मैंने वो गोली खा के देखी है, मगर चिनकें बहुत पड़ती है। बीबी और पेशेंट्स भी अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात मैंने बतानी थी आपको, कि इधर से मेरा मरोड़ उठता है तो इधर को वाट सा फिरता है तो इधर आ जाता है, इधर आ जाता है तो इधर ये बच्चा सोया होता है, फिर मैं तंग होती हूँ। मैं कहती हूँ साथ बच्चे को भी ना वाट पड़नी शुरू हो जाए। अच्छा अच्छा बीबी लग गया पता। एक मिनट भैना तेनू पता लग गया ना, मैनू तो लग पता गया। तेनू मैं की दसा, 6 महीने हो गए अल्लाह जानता, इतना सख्त मरोड़ पड़ता है, मरोड़ ही पड़ता जाता है, मरोड़ ही पड़ता जाता है, मरोड़ ही पड़ता जाता है। अवान से मैं तो बहुत तंग हुई हूँ, ऊपर से सास मेरी लड़ाको पूरी। मैंने तो उसे माँ समझ के मैं सास की इज्जत की है, जब से माँ आई हूँ मुझे बीमारी मेरी सास की वजह से लगी है। तो मैं क्या बताऊँ, चलो डॉक्टर साहब आप मरीज देख लें, मैं इससे बात नाज़रीन, खबरों पर हमारा तबसरा जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। इस साल पंजाब पुलिस ने नाके लगाकर ईदी इकट्ठी करने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तमाम रिकॉर्ड तोड़ते नहीं सी, हमारे पास तो रिकॉर्ड ही है, कौन से तमाम रिकॉर्ड कौन से तोड़ दिए? ईदी इकट्ठी अपने पल्ले से तमाम रिकॉर्ड डाल देते हैं, हद हो गई है वैसे आपकी भी। एक रिकॉर्ड होता है बस थाने में पड़ा हुआ, वो कहीं टूट गया होगा हमसे। तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और कौन सी हमने ईदी इकट्ठी की है भाई? हद तो आप लोगों वाले भी, आप मीडिया वाले भी हर बात वो जो थे करते जाते हैं, जो थे सुनाते जाते हैं। नाके लगा के लोगों को तंग करते हो, रिश्वत तलब करते हो, और क्या करते हो? क्या जरूरत है नाके लगाने की? जब बंदे वैसे ही तो खुदा तरसी दे जाते हैं, तो नाके लगाने की क्या जरूरत है भाई? अच्छी खुदा तरसी है। अब तो खुद लोग पूछ लेते हैं कि भाई जी पेट्रोल कौन है, तो ले लो पैसे। मल्लेदार खुद थाने में, अब तो अवेयरनेस बड़ी आ गई है यार। ओहो ऐसी अवेयरनेस क्या मल्ले के बंदे ने प्लेट में इतनी अवेयरनेस डाली हुई थी, आई मीन सेवियां, और मेरे लिए वो लेके आया थाने में। अच्छा, सारे मल्लेदारों ने खुद बड़ी हमदर्दी की है। जी जी। अब तो पुलिस के साथ इतनी शफकत करते हैं लोग। कल ईद के दिन में बैठा हुआ था थाने में, जी जी। एक बुजुर्ग आए मल्ले के, बुजुर्ग आदमी, उन्होंने आके मुझसे पूछा, एसएचओ साहब माफ करना, सदका सुदका भी ले लेते हो? और मैंने कहा बुजुर्गों क्या कर रहे हैं आप, बुजुर्ग आदमी, अब आप क्या कहूँ आपको? वो मुझे सदका पूछ रही है, आप तो सोटी में आए हैं, मैं हमेशा करोला में आता हूँ। अल्लाह को मैंने कहा निकालो इस बाबे को बाहर। अल्लाह ने खींच के बाहर निकाला, बाबे को गुस्सा चढ़ गया, बाहर जाकर ऊंचा ऊंचा कहना शुरू हो गया, हराम खा लेते हैं, सदका नहीं लेते, हराम खा लेते हैं। ईद के दूसरे रोज भी चिड़ियाघर में जबरदस्त गहमा गहमी, बच्चे जानवरों को देखकर खुश होते रहे। अजीजी साहब, ओए होए होए, ईद वाले दिन और आज बहुत रास्ता चिड़ियाघर में। ओए होए, ये तो सबसे पहले उधर से होके आया होगा। वो उधर से होके आया हो तो तुम्हें बता रहा हूँ, और मुझे बनमानस का फोन आया। इतना रश, जानवर अक जाते हैं बेचारे। ऊपर से चिड़ियाघर में ईद वाले दिन तो बच्चे भी बड़े शरारती हुए होते हैं। अच्छा। मैं गया हूँ तो अल्लाह में शुरू हो गए। अब मैं तो उनका पुराना फ्रेंड हूँ ना, मुझे तो अगले बताते हैं कि चाचा हुआ क्या हमारे साथ। फिर बांदरों के पिंजरे के पास में गया हूँ, बांदर बेचारे सीखे पकड़ के फुल ऊपर पहुंचे हुए। मैंने कहा नीचे आओ, क्या कर रहे हो? ऊपर से मुझे कहती है चाचा तू ते आजा, थले बच्चे तंग कर देने। सारे बांदर ऊपर चढ़े हुए, नीचे सिर्फ उनका एक बुढ़ा दादा बेचारा परे लेटा हुआ था। उसको मैंने आवाज मारी, मैंने कहा चाची हो हयूर क्या हुआ है, सुते हुए हो? आज ईद है जनाब, उठो ना। उधर से मुझे कहने लगा जा कम कर जाके साउंड दे मैनू, ईद ते मेरी केड़ी बेबे ने शीर खोरमा पकाया है। बहुत रश लगा हुआ था, पींगा पंगूड़े हर शा अंदर हाला लाला हुई थी। बच्चे ऊंट पे सवारी कर रहे थे। अच्छा। और 10-10 12-12 बच्चे ऊंट पे चढ़े हुए थे। ऊंट बेचारा तंग पड़ा हुआ, मुझे कहने लगा जी ईद कदम मुकनी है, मैं किथे फस गया।
میں نے کہا پاؤ اٹھ کس لیے پریشان ہو رہے ہو, آج تو عید ہے, موج لگی ہوئی ہے تمہاری, ہر بچے سے 10 روپیے وصول کر رہے ہو. آگے سے مجھے کہتا ہے جی روے 10 روپیے کو, یہ پکڑو میرے سے 100 روپیہ لو, مجھے 5 منٹ ایسے کر کے تو دکھاؤ. لو جی اس کے بعد میں پہنچا ہوں اپنے فاسٹ فرینڈ چاچے رچ کے پاس. ہائے 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 ہائے, ڈبی والا کھیس اوپر لے کے نکر میں بیٹھا ہوا ڈرا ہوا. میں نے کہا چاچا خیر ہے, بڑی بکل ماری ہوئی ہے. مجھے کہتا ہے ادھر آئے, اور مجھے یہ تو بتاؤ رش بڑا لگا ہوا ہے, کہیں صبح مجھے پھانسی تو نہیں دینی. میں نے کہا چاچا پھانسی کس بات کی؟ کہتا ہے جیل میں بڑے ملاقاتی آئے ہوئے. میں نے کہا چاچا نہیں عید ہے اس لیے راشیا. کہتے ہیں مجھے تو کل سے فکر لگی ہوئی تھی کہ یہ اللہ خیر کری مجھے پھانسی چاڑنے لگے. کل میں نے تمہاری چاچی سے اپنی فکر کا اظہار کیا ہے تو خوشی سے اندر دوڑ گئی اور کل سے میک اپ کر رہی ہے بیٹھ کے. مجھے ویسے کل بھی شک پڑ رہا تھا, لگتا تو خوشی کا موقع ہی. کل باندری ادھر سے 2-3 لال جوڑے سوا کے پتہ نہیں درجی سے لائی تھی, گزری ہے. میں پوچھنے بھی لگا اس سے, پھر میں نے کہا نہیں ہمیں باندر مائنڈ کرے گا, ہماری باندری کو وادی لگاتا ہے. میں نے کہا چاچا کوئی بات نہیں, حوصلہ رکھو, ڈرا نہ کرو. یہ لا پکڑا 100 روپیہ, چاچی میری کو عید دینا میری طرف سے. لے آ ادھر دفع کرا چاچی نو, سگٹ لانگے دے چاچی نو کہتے لی دے دی. لو جی ادھر سے میں گیا ہوں شیر کے پنجرے کی طرف. ہائے 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 ہائے, بہت دکھی بیٹھا ہوا تھا شیر. مجھے جاتے ہی رونے لگ گیا. عزیزی ان کو بات کرو عزیزی, اور پورا جلوس ہی چڑیا گھر میں گھسا دیا انہوں نے. اور ان کو سمجھاؤ میں جنگل کا شیر ہوں, مسلم لیگ کا شیر نہیں ہوں. عزیزی سارے شہر کو پتا چل گیا ہے کہ شیر کے ساتھ چڑیا گھر میں کتے والی ہو رہی ہے. عزیزی اوپر سے چھوٹے چھوٹے بچے اندر آ گئے ہیں. عزیزی اس نئی نسل کو سمجھاؤ شیر گوشت کھاتا ہے, نامراد باندروں کے جھولے میرے آگے پھینک رہے ہیں. عزیزی لو جی شیر بیچارہ میرے اگے اپنے روڑے رو رہا تھا تو پیچھے سے شیرنی پر جائی کی آواز آئی ہے, ارے سنتے ہو؟ بدتمیز آدمی. یار مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ یہ نہیں کہنا تھا, نہیں کہنا تھا. میں تمہارے ذہن سے نکالوں گا. ناظرین یہاں سے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. میرا جی آپ کو بہت بہت عید مبارک. تھینک یو. عید کنگریچولیشن آل آف یو ٹو. عید کانگریچولیشنز, عید گریٹنگز ہوتی ہیں میرا جی. ہاں عید مبارک کہہ رہی ہوں, گریٹ کہاں سے آ گئی. تھینکس گاڈ یہاں 32 آ رہی ہے, آئی مین بتی آ رہی ہے. بٹ یور فین از واکنگ ویری سلو, پلیز شارپ اٹ. لوڈ شیڈنگ نے تو لمٹ کر دی ہے, سارا دن 32 نہیں آتی, جس وقت آتی ہے اس وقت میں خود بند کر لیتی ہوں. چیڈز چڑھنے لگ گئی ہے مجھے, چیڈز. 32 مجھے بڑی بری لگنے لگ گئی ہے, تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے پھر بھاگ جاتی ہے. میرا جی خیریت ہے؟ آتے ہی آپ نے آج تابڑ توڑ انگریزی کے حملے شروع کر دیے. Obviously, my English is very good. No doubt, no doubt. Yes. اچھا میرا جی آپ یہ بتائیے, آپ کے خیال میں ہماری انڈسٹری جو زوال پذیر ہے وہ کیوں ہے؟ میرا خیال ہے آپ نیوز پیپر نہیں پڑھتی. کیوں؟ روزانہ نیوز پیپر میں آیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری انڈسٹری کے فلاپ ہونے کی وجہ ہے یہ صرف لوڈ شیڈنگ ہے. اب دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ روڈز کے اوپر ویل برنز کر رہے ہیں صرف ہماری انڈسٹری کو بچانے کے لیے. فیصل آباد میں بھی آور ہاؤس کے نیچے جلوس نکلا ہے, آور ہاؤس گھنٹہ گھر.
लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री की तबाह होने की वजह सिर्फ और सिर्फ लोड शेडिंग है। लेकिन मीरा जी वो तो अपनी इंडस्ट्री के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, मैं तो आपसे फिल्म इंडस्ट्री का पूछ रही थी। देखिए इंडस्ट्री सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री होती है, वो जो दूसरी आप बात कर रहे हैं 2000 कारखानास। यस, यू मीन फैक्ट्रीज? फैक्ट्री उर्दू में कहती हैं, कारखानास इंग्लिश में कहती हैं। मीरा जी कारखाना उर्दू का लफ्ज है। ओहो स्टूपिड, अगर उर्दू का लफ्ज होता तो कारखाना ना होता, गाड़ी खाना होता। कारखाना इंग्लिश का लफ्ज है, कारखाना, जैसे जिम खाना, खाना ना खाना। अच्छा ये बताइए आपकी मसरूफियत कैसी चल रही है? बस ये रोजों की वजह से मैंने कुछ रेस्ट किया है। अच्छा, अब तो ईद के बाद तो मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी, बहुत बिजी हो जाऊंगी। I mean, मेरी बजियत बहुत बढ़ जाएगी। इसका मतलब है ईद के बाद तो आपके पास डेट्स होंगी ही नहीं? नहीं, कुछ बच गई हुई है डेट्स, क्योंकि मैंने रोजों में 10 kg इकट्ठी मंगवा ली थी। मीरा जी उसका मतलब है अपॉइंटमेंट्स आपने नहीं दी हुई। डेट्स, यू नो, खजूर को कहते हैं इंग्लिश में डेट। डेट्स का मतलब तारीख मीरा जी। तारीख को इंग्लिश में हिस्ट्री कहती है। सॉरी मीरा जी, इसे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। अल्लाह करे ताई खटक डांस वाला चोला पा के बैठी। तो मीरा जी आपने खुद क्या फैशन किया हुआ है? यू नो, ये लेटेस्ट फैशन है, अच्छा, इसे मूनसून फैशन कहते हैं। मानसून? तंबी चौक के चक्कर लगना। तो मीरा जी पिछले दिनों आपको कोई तमगा वगैरह भी तो मिला है? यस, ब्यूटी परफॉर्मेंस मेडल मिला है मुझे, तमगाए हुस्न कारकर्दगी, और वो सिर्फ मेरे हुस्न की वजह से मिला है। एंड दिस वाज अ बिग टॉक फॉर मी। जी? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ओह अच्छा। पेंडू। लेकिन मीरा जी आपके मेडल पर तनकीद भी बहुत हो रही है। यस, यू नो, ये यहाँ तनकीदाइज करने वाले भी बहुत होते हैं, हाँ? तारीफिएट करने वाले भी बहुत होते हैं। मतलब क्रिटिसाइज करने वाले और अप्रिशिएट करने वाले। ये कौन है पेंडू जी? ये तो फिर ऐसे ही होता है ना, मिला जुला ही होता है। तारीफिएट भी बहुत ने की है मेरी। अच्छा, तारीफिएट किस किसने किया है? मेरी मॉम ने बड़ी तारीफिएट किया है, और अच्छा। मुझे मेरी सिस्टर्स ने बहुत तारीफिएट किया है। अच्छा, ये जो तनकीदाइज किया है लोगों ने, उससे मैं समझती हूँ कि वो क्या शेर है कि ये तो चलती है तुझे हाई फ्लाई करने के लिए। ऊंचा उड़ाने के लिए। हाँ, ये कौन है पेंडू जी? हाँ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਇਕੱਠਾ ਗੁੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। अच्छा मीरा जी ये बताएं आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखें, वो जो मैंने एनजीओज प्लान की हुई है उसको मैं जरा एक्टिव कर रही हूँ अब। अच्छा, तो आपकी एनजीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, एक एनजीओ का प्रेसिडेंट है, एक ऑफिस सेक्रेटरी है, और सफाई करने वाली माई भी रखी। मीरा जी ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है मकासद क्या है? उसी तरफ मैं आ रही हूँ, ठहर भी जाओ एक मिनट, सवाल चो सवाल ना करो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ खुरमानियां खा के गिटक चो बादाम भी काट लेंगे। मकासद उसके क्या होने हैं? माई एनजीओज ओनली फॉर वुमेन्स। अच्छा, यू नो, और मैंने ये सोचा है कि ये जो पेंडूज खवातीन को तरफड़ पड़ जाते हैं, उन तरफड़ पे हम रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और ये जो गरीब औरतों को जुएं पड़ जाती हैं, अच्छा, जुओं पे भी हमने बहुत वर्क किया है, और इस पे रिसर्च करने के लिए हमने कोई 150 बांदर्स भी इकट्ठे किए हैं। यू नो, बांदर इज फाउंडर ऑफ जुआस। हमने जो एनजीओ बनाई हुई है वो ओनजीओ नहीं बना ली हुई, हम इस पे काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, और हम अब डींगी मच्छर पे भी काम कर रहे हैं। वाकई? हाँ, इस डींगी मच्छर को हमारी एनजीओ सीधा करने की कोशिश कर रही है। क्या मतलब? ये जो डींगी मच्छर होता है ये खतरनाक इसलिए होता है कि ये डींगा होता है। इसको जब सीधा कर देंगे तो इतना खतरनाक नहीं होगा। अच्छा, कैसे सीधा कर रहे हैं आप उसे? जाहिर है जुतियां मार के करना है, और छैनी थोड़ी लैके देनी ना मच्छर सीधा करने बह जाना। लेकिन इस तरह तो वो मर जाएगा। तो फिर इन कामों में कुर्बानियां तो देनी पड़ती है। ये कौन सी एनजीओ है मीरा जी जो जूतियों से मच्छरों को सीधा कर रही है? फिर जूते तो मारने पड़ते हैं। यू नो, कुकिंग ऑयल इज नॉट कम विद स्ट्रेट फिंगर। मतलब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता। ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੌਣ ਪੇਂਡੂ ਜੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੰਦ ਨਾਲ ਅਖਰੋਟ ਵੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। अच्छा मीरा जी
شادی کا کیا ارادہ ہے؟ پلیز یہ کویسچن نہ کرے. میں تو اس کویسچن کا آنسر دے دے کے تو تنگ آ گئی ہوں. اب تو کوئی سوال یہ کرتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے میں دوڑ جاؤں. میں اس لیے نہیں دوڑ رہی کہ میں ڈگ پہ نہیں ہوں. پلیز کوئی اور کویسچن کرے. ڈونٹ ایٹ مائی ہیڈ. آلریڈی مائی ہیڈ از ریوالونگ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.